And equilibrium is the state of system where the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. Okay, we have studied types of physical equilibrium, means equilibrium set up in physical processes, and then equilibrium in chemical processes. Okay, आज जो बच्चे टॉपिक करना है, जो फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज characteristics of equilibrium in chemical equations. हेडिंग लिखो, characteristics of chemical equilibrium. Characteristics of chemical equilibrium. First characteristic is chemical equilibrium is dynamic in nature. Dynamic in nature. Dynamic nature of equilibrium. हमने पहले भी पढ़ा है ना, that at equilibrium it seems like no reaction is taking place because there is no change in any observable properties. But fact क्या है? Fact is that even at equilibrium, both forward as well as backward reactions do take place, but they take place at equal rate. Okay, this is dynamic nature. So I'm writing it done. Same copy paste करना है. Okay, we have done this now. Dynamic nature of equilibrium. Second characteristic is the properties of the system of the system become constant at equilibrium. These become constant at equilibrium and remain unchanged after that, and remain unchanged after that. Okay, so the temperature become constant once the equilibrium is attained. Okay, concentration of reactants and products become constant once the equilibrium has been attained, and these properties remain unchanged after that. Okay, just like this graph. Suppose concentration है, यही है ना, at equilibrium state concentration of products, this part green part is for concentration of products. Okay, once the system has attained equilibrium, it become constant, and same is true for reactants. Concentration of reactants decreases
but till equilibrium has attained, उसके बाद it become constant. Yes, so properties of system become constant at equilibrium and remain constant after that. This is second characteristic. Third is the equilibrium can be attained the equilibrium can be attained only if the system is closed. Only if the system is closed one. Parth, there? Yes, sir. What is closed system? है कुछ idea? No? Sana, what is closed system? Sir, when transfer of energy and matter don't take place. When transfer of matter don't take place, but energy can be. है ना? That is closed. जो तूने बोला था ना, that is isolated. Okay, ठीक sir. है? So equilibrium can only set up in this type of system, a closed system. ठीक है? Not open. इसमें equilibrium हो सकता है, ठीक है? But equilibrium cannot set up in this system. It is open system. Okay? No equilibrium. This one, first one is closed. Open system. सर ऊपर करना मैंने नोट करना। हाँ जी, अच्छा नोट करना है, कर लेगा। क्या होगा? Okay. Fourth is the equilibrium can be approached from either direction. देखो, the equilibrium can be approached from either direction. Means from left to right or from right to left. Equilibrium can be attained from either direction. देखो, example consider करो. Consider example ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ. For example, in the reaction, this hydrogen plus iodine is in equilibrium with 2Hi. Consider this system. All are gases, iodine vapor and Hi. The equilibrium can be attained from both sides.
from both sides. Both side means whether we start the reaction by taking H2 and I2 and get HI, ठीक है, or by taking it will decompose to H2 and I2. अच्छा है क्या, देखो रिएक्शन है, फर्स्ट कंसीडर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। इन फॉरवर्ड रिएक्शन क्या क्या चीज हो रही है, इन फॉरवर्ड रिएक्शन वी आर टेकिंग हाइड्रोजन एंड आयोडीन एज रिएक्टेंट एंड वी गेट HI एज प्रोडक्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू characteristics जो लिख रहे हैं, characteristic लिखा that equilibrium can be approached by starting from either direction. Either you can take hydrogen or iodine, ठीक है, forward reaction, or you take HI as reactant, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, H2 and I2 in second case. किसी भी साइड से स्टार्ट हो जो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ग्राफिकली देखो, सेम चीज ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं। On x-axis consider time, y-axis we have concentration, okay. For this reaction, forward reaction, for forward reaction H2 is reactant, I2 is reactant और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट इज 2HI, okay, यही है ना। with time what happens to the concentration of hydrogen and iodine, जल्दी जल्दी, लास्ट टाइम करा था, बोलो माइक ऑन करो। सर डिक्रीज होएगा, हाइड्रोजन एंड आयोडीन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। मैं कब बना रहा हूं देखो, कुछ ऐसे, ठीक है, एंड देन बिकम कांस्टेंट, इज इट ओके, ऐसे ही होगा ना कुछ। हाइड्रोजन एंड आयोडीन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, अग्री। दूसरी चीज, व्हाट हैपेंस विद कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, चलो इसकी मान लिया डिक्रीज हो रही है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हो जाएगी इंक्रीज, कीप ऑन इंक्रीजिंग। Okay, this is concentration of products. Okay. This green one represent concentration of products, that is concentration of HI. स्क्वायर ब्रैकेट में पाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन, ठीक है।
Red line represent concentration of reactants, hydrogen concentration and iodine concentration. Collectively क्या हो रही है? It decreases. Okay, चलो प्लस वाला साइन रहने दो, कॉमा, दोनों की concentration. This, ठीक है? अग्री? जो अब रिएक्शन लिखी है ऐसे ही कुछ ग्राफ होगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, यस सर। ठीक है? बट ऑपोजिट सोचो दूसरी साइड से भी, अब बच्चे दूसरी साइड से सोचो, दूसरी साइड रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इज इन दिस केस इज HI इज रिएक्टेंट, बैकवर्ड रिएक्शन की बात हो रही है अब। व्हेन यू टेक HI, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? H2 एंड I2 हो गया ना, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिफरेंट। यस नाउ सर। रिएक्टेंट इज HI, क्या होएगा विद टाइम? Its Decrease. concentration decreases and then Decreases. become constant. Constant. ठीक है? यस सर। Concentration, अगर मैं ऐसा कुछ हो जाएगा, यस सर। then it become constant, कुछ ऐसा जो स्क्रीन पे है। इनफैक्ट मैं पूरी लाइन ही कंप्लीट कर रहा हूँ दोबारा। हाफ इस पेज का 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक हो जाएगा हाफ कहीं। ठीक है, सही कुछ है। ऑपोजिट साइड से अगर देखो, सिमिलरली फॉर सर ये रिएक्टेंट्स, इंक्रीज क्यों हो रही है? कैसे? सर ये इंक्रीज क्यों हो रहा है मैं दस HI का? 2 मिनट 2 मिनट रुको, ग्राफ में पहले सिर्फ क्या कहूँ मैं, सिर्फ लेफ्ट साइड ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। मैं लाइन मार रहा हूँ, लाइन से लेफ्ट साइड पे देखो, वो ठीक है? ठीक बनाया है? यस सर। यस ओके, नाउ कंसिडर फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज इट ओके? अब तो रिएक्टेंट क्या है बच्चे? रिएक्टेंट इज HI, HI है ना? नाउ रिएक्टेंट इज HI, HI कंसंट्रेशन sir. क्या हो रही है विद टाइम? कम। कम, ठीक है? ऐसे ही हो रहा है ना, विद टाइम HI कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। मैं ग्राफ ठीक कर रहा हूँ, टाइम हाफ से पहले पहले ऐसे है, जैसे टाइम चलेगा ऐसे रीड करना है, ऐसे हाफ से पहले इस डायरेक्शन में, ऐसे टाइम को। ओके, अब ठीक है कुछ ग्राफ? यस इज इट सर। ओके? एंड रेड लाइन देखो, फॉर H2 and I2, for H2 concentration of H2 and concentration of I2,
as the reaction proceeds backward, concentration of H2 and I2 क्या होती जाएगी with time? It will keep on increasing. वही लिखा हुआ है, ठीक है. concentration of H2 and I2 increase हो रही है for backward reaction, ठीक है. मेन चीज जो इस ग्राफ में देखनी है तो ये है, you either start from HI or from H2 and I2. The reaction will ultimately attain equilibrium. ठीक है, वो लिखा हुआ है that equilibrium can be attained from either direction, जो मतलब है. सर दूसरी साइड से क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे को? कैसे? नहीं, क्रॉस नहीं करेंगे. ओके सर. ठीक है. सो जो ऊपर कैरेक्टरिस्टिक है उस ध्यान देना that equilibrium can be attained from either direction. ठीक है. दिस ग्राफ इस जनरल ग्राफ जरूरी नहीं है H2I2 के लिए करना है, किसी भी रिएक्शन के लिए पॉसिबल है जो जिसमें इक्विलिब्रियम सेटअप हो रहा हो. ठीक है. एक कंडीशन भी पढ़ी है आपने, बाकी तो चलो कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं, एक कंडीशन भी पढ़ी है. कंडीशन क्या है? दैट इक्विलिब्रियम विल सेटअप ओनली इन क्लोज सिस्टम. नोट कर लो प्लीज. हो गया? डन. नेक्स्ट लिखें. लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, फिफ्थ वन. कैटलिस्ट की प्रेजेंस क्या करेगा? कैटलिस्ट डज नॉट alter the equilibrium point or the position of equilibrium. Fifth characteristic लिखो chemical equilibrium का. Catalyst. You know what is catalyst? Catalyst वो substance है which alter the रिएक्शन. of reaction. मतलब वो speed slow कर देगा या fast कर देगा, but it will not attain or alter the equilibrium position. Catalyst. सर से हाँ जी. फास्ट नहीं करता, स्लो. हाँ स्लो. ठीक है, ये नॉर्मल डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो फास्ट करता है, ठीक है, बट एक्चुअल है ये ऑल्टर करता है. नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं उसे. हाँ जी. क्या क्या बोल स्लो रहे हो? कुछ और वर्ड क्या चीज होता है? नहीं भूल गया, आपका कुछ था. हाँ जी, पॉइजन बोल सुना होगा तूने. पॉइजन नहीं बोलते नहीं, हैं. कुछ और ही था जी. कोई अजीब, मैंने तो पूरी केमिस्ट्री में कभी पढ़ा नहीं. चलो बता देना अगर कभी मिल गया कुछ और. कैटलिस्ट डज नॉट चेंज. सर स्लो करने का फायदा क्या होता है पर? डज नहीं चेंज दी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक है. it means catalyst, it just help to attain equilibrium fast. जो दुष्यंत तूने अभी तक पढ़ा हुआ है ना, जो आप सभी ने अबाउट कैटालिस्ट,
that is only that catalyst increases the rate of reaction. ठीक है, we have a detailed topic in +2 on catalysts. ठीक है, 2 कैटालिस्ट होते हैं। वैसे किसी ने अगर ओरली किसी टीचर ने बोला तो मैं तुझे वैसे बोल देता हूँ, वो मॉडिफाई कर ले। कैटालिस्ट सिर्फ इंक्रीज नहीं करते और वो डेफिनेशन वैलिड भी नहीं है। कैटालिस्ट स्पीड को चेंज करते हैं रिएक्शन की। दूसरा क्वेश्चन पूछा शायद अर्जुन ने, दैट स्पीड को स्लो करने का फायदा क्या है। बच्चे, देयर आर मेनी रिएक्शंस जो बहुत रैपिड होती हैं, ऑलमोस्ट एक्सप्लोसिव होती हैं, है ना। उन्हें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कंट्रोल करना या ऐसे बोल दो स्लो डाउन करना, और उनका स्पीड और रेट Yes, sir. स्लो डाउन करते हैं बाय एडिंग पॉइजन, बाय एडिंग नेगेटिव कैटालिस्ट। ओके, ठीक है। दीज आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब आ जाओ फर्स्ट लॉ पे। थ्योरेटिकल पार्ट से थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट पे मूव करेंगे अब। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। इसे लिखो, इट स्टेट्स दैट the rate of a chemical reaction, the rate of a chemical reaction is directly proportional to, is directly proportional to the product of molar concentration to the product of molar concentrations of the reactants at a constant temperature at a constant temperature at any given time, at any given time। ठीक है, कोई रिएक्शन कंसिडर करो। कंसिडर अ रिएक्शन, रिएक्शन ले लो A plus B changes to products। For this reaction according to law of mass action क्या बनेगा, रीड करके देखो। According to law of mass action बन सकती है स्टेटमेंट। According to law of mass action the rate means the speed of a chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration, मतलब molarity of reactants। Anyone? कोई फॉर्मूला? Rate is directly proportional to reactant concentration of A, concentration of B। This is law of mass action। Okay, बट ठीक है, डेफिनेशन वाइज ओके है। इम्पोर्टेंस मे बी आ जाए, कोई ज़्यादा ब्राइट चांसेस नहीं है कहीं पे, बट जो अब करेंगे
वो इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट वेरी वेरी 2-3 बार लिख लेना, इम्पोर्टेंट जो पूरा टॉपिक करना है. इट इज नोन एज लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम. लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जो हम चैप्टर कर रहे हैं पूरा. लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. से लिखो, इट स्टेट्स दैट, स्टेटमेंट पहले, states that the ratio of product of molar concentration, product of molar concentration of products raised to the power of products to the product of molar concentrations of reactants, molar concentration of reactants. With each concentration term, with each concentration term raised to the power equal to its stoichiometric coefficient, equal to its stoichiometric coefficients is constant. ठीक है, सो डेफिनेशन ऑब्वियसली थोड़ी लेंथी हो गई है, तो कौन सा कोएफिशिएंट? मैं बता रहा हूँ. कांस्टेंट at a constant temperature, at a constant temperature. स्टोक्यूमेट्रिक कोफिशिएंट, बैलेंसिंग फैक्टर, जिससे बैलेंस नहीं करते रिएक्शन को, उसको बोल रहा है बच्चे. इज कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. स्टेटमेंट अब बाद में रीड करना, वर्ड टू वर्ड रीड करेंगे. एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो भी है क्या चीज. एक कंसिडर करो, कंसिडर एक रिएक्शन लो, ए प्लस बी. फेमिलियर हो जाओ इस रिएक्शन से, बहुत बार लिखूंगा, बहुत बार. बी in equilibrium with C plus DD. Small a, small b are stoichiometric coefficients of reactants. ठीक है. Small c and small d are stoichiometric coefficients of products. Capital A, capital B, capital C, capital D, I hope you know reactants and products हैं. अब देखो, अकॉर्डिंग टू जो हमने लॉ की करा है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. अब स्टेटमेंट रीड करनी स्टार्ट करो, वर्ड टू वर्ड दिल में करो. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ
केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होएगा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम वो कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ concentration of products, product of concentrations of products, प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट आर सी C and D. एंड डी, ठीक है, टू दी रेशो ये है ना, रेशो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू दी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट कौन कौन से हैं? ए एंड बी। B. यहां तक ठीक है? सबसे Yes, इंपॉर्टेंट चीज, बाकी चीजें तो चलो बच्चे भूल हो जाते हैं, ये चीज याद पता लगी क्या कर रहा हूं मैं। स्क्वायर ब्रैकेट क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट इज मोलर कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर, वो फर्स्ट चैप्टर वाली मोलैरिटी, इट इज मोलैरिटी, ठीक है, Okay, sir. नंबर ऑफ मोल्स, सिंपल वर्ड, मोलैरिटी भी छोड़ो यार, वो भी फिर कहोगे फर्स्ट चैप्टर कहाँ से आ गया। मोल पर लीटर मतलब 10 मोल्स 1 लीटर में है, या 2 मोल 1 लीटर में है, दिस इज दैट मोल पर लीटर, ठीक है। आगे रीड Sir. करो उधर। हाँ जी, लोअर केस में जो लिखा है वो क्या है? लोअर केस में स्टॉक्यूमेट्री कोफिशिएंट, बैलेंसिंग फैक्टर, अच्छा, जैसे 2a + 3b चेंजेस टू 4b 4c प्लस ऐसा कुछ, ठीक है। आगे रीड करो, इसके बाद क्या बोल रहा है उसने, ये टर्म्स लिख दी, कंसंट्रेशन टर्म्स, देन ही सेज ईच कंसंट्रेशन टर्म इज रेज टू द पावर इट्स स्टॉक्यूमेट्रिक कोफिशिएंट, सो c रेज टू द पावर क्या करूं? Small c c. d a b, B. ठीक है, इज कांस्टेंट, यही लिखा है ना, इज कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट को नाम दे रहे हैं दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। This is your first formula of the chapter. What is Kc? Where Kc is equilibrium constant. Okay, it is equilibrium constant. Okay. यहाँ पूरा लिख दूं, where K is equilibrium constant in terms of concentrations. In terms of concentration. पार्थ देख ले, मैं तेरे हर टेस्ट में या हर हिंट दे रहा हूं तुझे डेली, ये तू पढ़ नहीं रहा, पता लग रहा है ना? केसी हो गया। दूसरा लिखो, एक और करना है। नाउ विल डू केपी। केपी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक और करना है, केसी कर लिया, एक और करना है, इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of pressure, in terms of pressure, okay, equilibrium constant in terms of concentration is Kc, एक बच्चे हमने करना है in terms of pressure। ऊपर जो रिएक्शन ली है उसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, जैसे आपने लिखा हुआ है, बस जी डाल लो हर एक में, जी जी
ठीक है, रिएक्शन तो सेम रिएक्शन लिखनी है, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp कैसे लिखोगे इंस्टेड ऑफ Kc? देखो फॉर्मूला, अगर आप Kp लिखोगे, Kp कैन बी रिटन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस C। अब चारों गैसेज हैं, चारों एक ही कंटेनर में हैं, सो अगर एक से ज़्यादा गैसें हो एक ही कंटेनर में, फिर प्रेशर को क्या बोलते हैं हम? विल कॉल इट एज पार्शियल प्रेशर। PC रेज टू द पावर C, PD रेज टू द पावर D डिवाइडेड बाय partial pressure of gas A raised to the power A, partial pressure of gas B raised to the power B। मुझे पता है बहुत सारे साइंटिस्ट के हो गए होंगे दिमाग से ये पार्शियल प्रेशर गायब, या याद है किसी से? याद है दुष्यंत? स्लो सी आवाज आई थी पीछे। हाँ जी, चलो फिर बाकियों को समझा दें, मैं इतने डायग्राम बना रहा हूँ। जब प्रेशर बहुत सारे होते हैं तो हम्म, जो टोटल प्रेशर होता है वो सारे इंडिविजुअल गैसेस का सम ठीक है, होता है। ओके। चलो सपोज ये कंटेनर है, इसमें 4 गैसेस हैं, ये अलग अलग कलर की ले रहा हूँ, ठीक है। सर ए, केसी वाला जो है हाँ कांस्टेंट, जी, वो नॉन रिएक्टिव गैसेस। वो सबके लिए एप्लीकेबल है? कौन सा? हाँ जी, मतलब कंसंट्रेशन। सॉलिड लिक्विड? नहीं 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 नहीं, वो उस पे आऊंगा मैं, उस पे ओके। आऊंगा, ठीक है। गैसेस के लिए है, ठीक है, बट सबके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है, सबके लिए नहीं है। किन किन के लिए है, किसके लिए नहीं है, उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2 मिनट रुके, पहले मैं ये अलग अलग बना दूं। सपोज ये बच्चे 4 गैसेस हैं, ठीक है। अब अगर टोटल प्रेशर P है, तो अलग अलग चारों गैसेस का तो हम अलग अलग लिखेंगे ना। जैसे ग्रीन क्या हो गया, सपोज ग्रीन में ले रहा हूँ PA, इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A, ठीक है। ब्लैक ले लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B, ओके। सिमिलरली एक और ब्लू, ब्लू वन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस C, मतलब टोटल में C का कंपोनेंट कितना है। और ये रेड वन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस D, ये कुछ ऐसा है, ओके। सो यहाँ पे आप प्लीज टर्म क्लियर रखना बिल्कुल, वेयर PA, PB, PC एंड PD ये है क्या? आर पार्शियल प्रेशर of gas A, B, C and D respectively, ठीक है। These are partial pressures of gas A, B, C and D respectively. So currently on your screen we have an equation, chemical equation, बिल्कुल टॉप पे 2 expressions हैं for equilibrium constants, one is for Kc, another is for Kp, ठीक है। जो टॉपिक है, जो बोलो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का, दैट इज द रिलेशनशिप। इन दोनों कांस्टेंट में रिलेशनशिप डिराइव करनी है हमने। वी हैव टू ड्राइव अ रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। यहां तक लिख लिया, मैं फिर से रीस्टार्ट आऊंगा सेम इक्वेशन के साथ, पहले यहां तक डालो, डन, यस सर। ओके। हेडिंग पा लो,
relationship between Kp and Kc. Between Kp and Kc. ठीक है, डेरिवेशन करनी है इसकी. सो अगर डेरिवेशन आ गई पेपर में डायरेक्ट, फ्री के 2 या 3 मार्क्स हैं, बहुत ही इजी, सिंपल. सो डेरिवेशन है, एक बार दोबारा से स्टार्ट होऊंगा, लिखना तो ज़्यादा पड़ जाएगा, बट एनीवेज I'll start from this. Consider a reaction. Consider a reaction A gas, important करके लिखना gas. B again gas. C gas. D gas. Okay. Now according to law of chemical equilibrium, क्या बनेगा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इक्वेशन वी हैव Kc इक्वल टू, जो पहले लिखा है एज इट इज लिखवा दो, कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर स्मॉल c, D रेज टू द पावर स्मॉल d, A रेज टू द पावर स्मॉल a and B raised to the power small b. But बच्चे this time consider this equation as equation 1. Okay. Also you know Kp is Pa, one second, सर PC नहीं हाँ वही चेक कर रहा था, अभी ऊपर गलत तो नहीं लिखते हैं. Pc raised to the power c, Pd raised to the power d, Pa Pb b. Make this equation number 2. दो इक्वेशंस आ गई Kp एंड Kc. एक इक्वेशन हमें पता है, वी नो, यहाँ से देखो, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, what is ideal gas equation? PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. This is ideal gas equation. और P is equal to N by V RT. अब बताओ, थोड़ा दिमाग, साइंटिफिक अप्रोच अप्लाई करके, बहुत डीप फैक्ट. व्हाट इज N by V? Anyone? 1 mark extra for the test. What is N by V? Density. वो तो मास बाय वॉल्यूम होएगा. Yes sir, yes. सोचो, Molarity. what is number of moles divided by volume? Molarity. अब भी जो कर रहे थे कंसंट्रेशन, ठीक है, अब मोलैरिटी बोलना बोल लो. ओके, कंसंट्रेशन जैसे पे स्क्रॉल कर रहे थे, बोला नहीं था, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इज कंसंट्रेशन. ओके, सो P क्या आ गया? P इज कंसंट्रेशन. इसे अगर C लिखूंगा फिर कंफ्यूजन हो जाएगी. लेट मी राइट M RT. ठीक है,
लिखवा दूं यहाँ पे साइड पे, बिकॉज n बाय v क्या होता है, इज मोलर कंसंट्रेशन, is molar concentration, number of moles upon volume. So P is equal to mRT. सब्स्टिट्यूट कर दो, P A क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, इसी इक्वेशन में कंसंट्रेशन ऑफ A RT, PB जब बोल नहीं ना रहे फिर मुझे ना दो तरफ डाउट होता है, या तो बिल्कुल ही नहीं समझ आया या कुछ ज़्यादा ही समझ आ गया। एंड PC भी कर दूं, PC इज इक्वल Yes, टू sir. concentration of C into R into T. RT. PD is equal to concentration of D RT. ठीक है, so we have partial pressures value. सेकंड स्क्रीन नीचे करना। M जो लिखा है, M is for concentration. अगर किसी के बच्चे को इससे डाउट अभी ये क्या चीज़ लिख दी, वैसे साइड पे लिखा है बट दोबारा भी लिख रहा हूँ, कंसंट्रेशन, इनफैक्ट मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। और अगर ए की फाइंड करनी है मोलर कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए लिख दी, बी सी डी, ओके। नाउ पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ, या द वैल्यूज ऑफ किनकी, पी ए, पी बी, PB, PC, पी सी एंड PD. पी डी, किसमें, इन विच इक्वेशन, Second. इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में पुट करके देखो। नाउ डू इट केयरफुली, वो मैथ्स वाली मिस्टेक नहीं करनी छोटी छोटी। पीसी, पीसी पिक करो यहाँ से, पीसी इज सी आर टी रेज टू द पावर स्मॉल सी, फिर डी ले लो, डी आर टी रेज टू द पावर डी डिवाइडेड बाय ए आर टी ए बी आर टी बी। ठीक लिखा है। वैल्यूज पुट करने में अगर किसी को हेजिटेशन है या दिक्कत आई हो तो देख लो। I've substituted the values of PA, PB, PC and PD in equation 2. So, moving on, solve करो इसे। KP is concentration of C raised to the power C, concentration of D raised to the power D, RT कॉमन ले लिया, RT रेज टू द पावर क्या हो जाएगा बच्चे, C D plus C. हाँ C प्लस D, ठीक है। एंड सिमिलरली न्यूमिरेटर में A रेज टू द पावर A, B रेज टू द पावर B, दिस साइड RT A प्लस B, ओके। नेक्स्ट स्टेप, ज्यादा हैवी तो नहीं हो गया मैथ्स। KP इज इक्वल टू, अब बताओगे आप इस टर्म को क्या बोलते हैं हम, है कोई चीज ये, देखो अपनी कॉपी पे, इसको कुछ बोला है, KC। गुड सुना, ठीक है, इट इज KC, दिस वन इज KC। उसे कंटिन्यू करो, दूसरी साइड सॉल्व करना, RT रेज टू द पावर C प्लस D माइनस A प्लस B,
ठीक है, यहाँ पे रोकनी है डेरिवेशन, रोक सकते हो बिल्कुल, ठीक है। ये फर्दर सॉल्व करूंगा 1-2 स्टेप्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवर ए डेरिवेशन फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बट के पी इज इक्वल टू के सी आर टी। ए प्लस बी किस सॉरी सी प्लस डी बच्चे किसके मोल्स हैं? दीज आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Product. प्रोडक्ट, ठीक है। ए प्लस बी किसके मोल्स हैं? रिएक्टेंट Reactant. के, ठीक है। सो के पी इज, और हम इसे थर्मोडायनेमिक्स में भी करके आए हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं? डेल्टा एन जी, And चेंज इन गैसियस नंबर ऑफ मोल्स। सो कीवर्ड अगर याद हो तो थर्मोडायनेमिक में भी यही था, दैट जो मोल्स इन्वॉल्व होंगे वो गैस के होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, ठीक है। किसके मोल्स हैं? मोल्स गैस के हैं, ठीक है। अब देख लो, मैं पूरी यू कैन जूम इन अपनी तरफ से, जहाँ पे जिसका किसी का मिस है, मैं थोड़ा इसे वो कर रहा हूँ छोटा, यहाँ से है डेरिवेशन। बच्चे छोटी सी डेरिवेशन है बट वेटेज काफ़ी है, 2 मार्क्स, इवन समटाइम्स 3 मार्क्स की भी पूछ लेते हैं। और देख लो कोई स्टेप नहीं है, जस्ट के पी के सी करिए। सो एक ये डेरिवेशन है, एक वो जो आपको टेस्ट में भी दी थी, लैम्डा De वाली ड्राइव Broglie. करनी है ना, डी ब्रोगली वाली, वो डेरिवेशन है। दोनों में से एक तो आ ही जाती है एग्जाम में, थोड़ा होल्ड बनाना। छोटी छोटी एक स्टेट्स ऑफ मैटर में है डेरिवेशन, वो डेंसिटी की डेरिवेशन है जो। हो गया सिमरजोत, डन। शांत शांत लग रहा है तू आज। सिमरजोत माइक ऑन कर। ओके बच्चे, फॉर दिस दीज 5 जो क्वेश्चंस हैं नीचे इक्वेशंस हैं, you have to write expression for Kc. For example, in first one, Kc is फिर aqueous को भी include करेंगे. concentration of NO, 1 second, raised to the power 2 because its stoichiometric coefficient is 2, this one, ठीक है। Concentration of chlorine raised to the power 1 because stoichiometric coefficient is 1, ठीक है, divided by concentration of NaCl, that is reactant, raised to the power 2 because its stoichiometric coefficient is 2. Okay. Now इसने पूछा अर्जुन ने that aqueous को भी कंसिडर करोगे? yes, aqueous is solution, उसे कंसिडर करना है। Sir, done. ठीक है, ना आप liquids लोगे प्योर, ना solids लोगे, but if it is aqueous, if it is alcoholic, वो कंसिडर करोगे। सर लिक्विड भी नहीं लेंगे प्योर? नो, लिक्विड भी नहीं Okay. लेंगे। कोई भी लिक्विड हो, फॉर एग्जांपल इस यहाँ पे 5th इक्वेशन में वाटर है, नहीं Yes, करना sir. कंसिडर, दैट हैज टू बी इग्नोर्ड, ठीक है। अनु, ऑल फोर? Yes, sir. ओके बच्चे, लास्ट वाला ही बोल दे बस, 5th वन। Sir, Kc is equal to CH3 हम्म, COOH plus C2H5OH upon Oh. CH3 COO C2 upon H5. हाँ बात सब पूरा ठीक बोला है, बट मार्क्स 0 है। Sir, क्यों? प्लस बोला है तूने, प्लस, वो प्रोडक्ट है। Yes, sir. Into. देखें, हाँ इनटू, अगर लिखा भी प्लस है तो गलत है। सो अगर लिखा ठीक है फिर चेक कर ले, अगर गलत लिखा तो चेंज कर लेना। वैसे इनफैक्ट सिर्फ इसने नहीं गलत बोला, मैंने
खुद पेपर में बहुत बच्चों का चेक भी किया ऐसे ही, वो प्लस लिखते हैं यहाँ पे, इट्स नॉट प्लस, प्रोडक्ट है, ध्यान रखना अगर किसी ने करा है। डिवाइडेड बाय CH3COO C2H5, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इग्नोर्ड, ये नहीं लिखते, दिस इज इग्नोर्ड। क्यों इग्नोर्ड? बिकॉज इट इज लिक्विड, यहाँ से बोलूं प्योर लिक्विड। CaCO3 वाला भी हो गया होगा, किसी डिफरेंस है? अश्विन डन? सर कौन सा पार्ट? फोर्थ पार्ट, सर फोर्थ नहीं हुआ, बाकी हो गया। थर्ड बोल दे फिर। सर N2 नो मल्टीप्लाई। नो नो नो, N2 कैसे? प्रोडक्ट बच्चे, प्रोडक्ट NH3, ये तो तू दशवंत वाली गलती करी है, उसने भी वही कहा था, NH3 स्क्वायर, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है अश्विन? यस सर। ओके, हाँ जी पनिमा, फोर्थ वन। CO2। ओनली CO2, गुड, ठीक है। दो बाकी सॉलिड हैं, वो नहीं लिखने। सो ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर द डे।